So, as I mentioned from the beginning, right? Means we are going to this classes is going to have means talk about the integration between AWS and Snowflake, right? So, how we have done this integration? So, there is a certain means steps we have to follow, right? We have a AWS account, and the for from the AWS account, what we need ARN, right? We need the ARN of S3 bucket, sorry, roles of the means S3, right? S3 roles we need required to integrate between Snowflake and AWS. So first of all, for starting any means any testing, guys, means I already mentioned you have to create your own DB, right? So first of all, you have to create own DB, which is already created, Susant DB, right? First things. Then what you need to create, Susant, your means your you have login into the means app or Teams app or means browser. Yeah. So the chat, my chat, you can show the show your the chat. Yeah. Go up, go up. Ah, for yesterday's means whatever the chat or whatever the Oh, command I have given yesterday. create ऑब्जेक्ट हाँ Not this one. इंटीग्रेशन के लिए जो डाले थे नीचे ये create stage object with integration. Okay. So first of all, we have to create means first of all we have to create a what you have to create a database, right? Already I mentioned for the everyone, right? Then you have to create two schemas, right? What are the schema you have to create? So you have to create schema. I'm giving you means in chat box again right now. So step number one for everyone, right? So suppose if this part is done, right? If this part is done, create database. If database is already there, you need to create a schema, right? Create a schema. What schema name you have to give? You have to provide the and means db dot file formats, right? db dot file formats. Why we are writing the file means db dot my db dot, suppose I have created my db, okay, my db, and then I have given the name of the schema file format. I have taken the means full name my db dot file formats. Ragini means uh, Ansu, why I have taken this one name mydb dot Which names? MyDB dot. file formats. Okay. What it indicate? I don't know about this. So See, means this is very bad, right? Ankit, no response. सर आपने एक कल बताया था ना. सब शुरू से बता रहे हैं यार, ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्यों करते हैं इसको, पहले दिन से तो ये बता रहे हैं इसको। डेटाबेस का इस नाम दिया है ना. हाँ, तो डेटाबेस दिए हैं तो डेटाबेस के नाम के बाद हम नेक्स्ट ने फाइल फॉर्मेट लेते हैं। जब हम यहाँ पे हाँ. देखते हैं तो ये फाइल फॉर्मेट स्कीमा का नाम है। ठीक है, सुशांत, हम्म. कैन यू शो मी मीन्स दिस नेम हाउ वी हैव क्रिएटेड मीन्स इन योर स्नोफ्लैक। तो सुशांत डीबी है पहले,
उसके नीचे देखो वो उस सबको क्लोज कर दो, मीन्स स्कीमा को स्क्रॉल अप किया हुआ है ना, उसको बंद कर दो उसको। हाँ, इसको मीन्स हाँ मिनिमाइज करो, नीचे वाला को मिनिमाइज करो, नहीं मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो, फाइल फॉर्मेट्स को भी मिनिमाइज करो, फाइल फॉर्मेट्स ऊपर में है ना। हाँ, so here see means the four schema is created here. One is public, one is information schema, one is file formats, one is external stage, right? So last two, information underscore schema and public schema, is by default created. Once you are going to create any database, it's automatically created, right? It's automatically created. तो माई डीबी जो है सुशांत अंडरस्कोर डीबी जो है वो घर है, मतलब वो मतलब क्या है, वो घर है, किसी का घर है, मतलब सपोज करो ये इंडिया है और इंडिया के अंदर जो है ये स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स हैं, एक्सटर्नल स्टेज, फाइल फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड पब्लिक स्कीमा। ना उस स्टेज के अंदर, उस स्टेट के अंदर जो फॉर्म कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर रखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है तो मैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ माई डीबी के अंदर लिया था, सुशांत डीबी के अंदर लिया एक्सटर्नल स्टेज, ये स्कीमा नाम नेम है, ठीक है। ओके सुशांत एक मिनट ऊपर लिख लेना, उसको कॉपी करके मैं चैट से उठा के तीनों मतलब वो चीज़ ऊपर में डाल दो, तो हाँ कंफ्यूजन करने के ये करने के लिए, हाँ तीनों उठा के रख दो ऊपर 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 टॉप में, टॉप में। हाँ नाउ, नाउ यहाँ पे क्या है, तुम अपने नाम से चेंज कर दो तो फाइल फॉर्मेट को, उसको माई डी बी अंडरस्कोर, हाँ माई डी बी अंडरस्कोर है ना, माई डी बी लिखा हुआ है, उसको वो कर दो सुशांत अंडरस्कोर डी बी कर दो। देखो बोलना बहुत आसान है गाइस, मतलब ये सब चीज़ ये बहुत ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब सिर्फ पढ़ना ये नहीं होता है, किसी को बता देने से, ये तुम हमेशा पीछे लगने से किसी से ये चीज़ नहीं होता है, खुद का मतलब माइंड को यूज करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो मैंने एक, ठीक है ऊपर जाओ, ऊपर ही रहो, मैं पहले क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक सुशांत डीबी बना रहा हूँ जो कि कंट्री है, इक्वल टू इट्स इक्वल टू कंट्रीज, ओके। ओके नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग ए स्टेट, आई एम क्रिएटिंग ए स्टेट, व्हाट स्टेट आई एम क्रिएटिंग, file formats, so that's why I'm giving country name dot state name, country name dot state name। तो पहला स्टेट क्या बन गया हमारा, फाइल फॉर्मेट बन गया, दूसरा स्टेट क्या बन गया, एक्सटर्नल स्टेज बन गया, ठीक है। तो इसीलिए पहले लिखते हैं सुशांत डॉट और डीबी। स्टेजेस हमें फाइल फॉर्मेट्स के लिए ही बनानी होते हैं, स्टेजेस तो हम एक फॉर देखो, एग्जांपल अगर एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल। एक्सटर्नल स्टेज स्कीमा इसलिए बनाते हैं कि एक तरह के डेटा को रखने के लिए, अब सपोज करो हमारे पास सीएसवी फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है, उसको बनाया मैंने, इसके अंदर रख दिया, सारे जितने भी फाइल फॉर्मेट्स होंगे उसके इसी इसी के अंदर रख लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमको कभी ओके खोजना आसान हो जाएगा ना, हम एक स्टैंडर्ड वे में काम करते हैं, क्यों हम लाइन यहाँ लगाते हैं, कॉमा यहाँ लगाते हैं, लाइन में अच्छे से सजा के क्यों रखते हैं, किसी चीज़ को अगर राइटिंग भी, हैंड राइटिंग भी लिखते हैं, किसी लेटर लिखते हैं तो अच्छे से क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी को आसानी से समझ में आ जाए। उसी तरह से यहाँ भी इसको रख सकते हैं। तो हम कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमको ये नहीं पता कि तुम काम करोगी ऑर्गेनाइजेशन में रहोगी कि नहीं रहोगी, बाकी लोग भी काम करेंगे उसी चीज़ पे, तुम्हारे लिखे कोड्स को बाकी लोग भी करेंगे, देखेंगे, उनको प्रॉपर कमेंटिंग नहीं होगा, जैसे ऊपर हमने कमेंट कर दिया क्रिएट डेटाबेस एंड स्कीमा, इसका मतलब कोई भी देखेगा कि यहाँ पे डेटाबेस बना है और स्कीमा बना है, ठीक है। और सुशांत ये हटा दो, इफ नॉट एग्जिस्ट वाला हटा दो, ये हटा दो, अभी कंफ्यूजन है, ये इसलिए बनाते हैं कि अगर ऑलरेडी बना हुआ होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये देखो, अब ये समझो पहले मतलब पीछे भी बनाए हम ऐसे ही सारे चीज, किसी को भी तुम अपने में जाके देखो, अंशु के अंदर जाके देखो, अंशु के थोड़ा स्क्रॉल करना, अंशु का मतलब स्क्रॉल करना, डीबी डीबी
डीवी डीवी, ये नहीं, हम ये नहीं, इसके अंदर नहीं बोल रहे, तुम वहीं रहो। डीवी, हाँ स्क्रॉल करना, देखो पब्लिक स्कीमा है या नहीं है। उसके लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं, अंशु डॉट डी अंडरस्कोर डीवी डॉट पब्लिक लिख कर ऐसे करके लिखते हैं। तो अभी लिखे हैं ये, ठीक है। अभी आगे नीचे चलो, अब क्या बनाएंगे हम, दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्रिएट स्टोरेज इंटीग्रेशन। स्टोरेज इंटीग्रेशन क्यों क्रिएट करेंगे, व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट स्टोरेज इंटीग्रेशन, टू इंटीग्रेट AWS और इंटीग्रेट अजूर और इंटीग्रेट GCP। we have to create the storage integration between Snowflake and AWS, right? Between Snowflake and Azure, same way we have to create the integration between AWS Snowflake and GCP, right? So right now, so create और replace, create और replace क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं replace, यहाँ create और replace नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कि अगर हम किसी चीज़ को फिर से दोबारा रन करने चाहते हैं, अगर मल्टीपल टाइम्स चेंजेस करना होता है, तो हम इसलिए रखते हैं कि एक ही नाम को हम बार बार यूज कर लेंगे। क्रिएट और रिप्लेस हम कर दिए तो फिर से ओवरराइट हो जाएगा, नया वाला जो हम डिटेल्स डालेंगे वो चला जाएगा, ठीक है। नाउ क्रिएट और रिप्लेस स्टोरेज इंटीग्रेशन, ठीक है गाइज। मीनवाइल हम एक टास्क दे रहे हैं सबको, जो जो है मतलब अभी अच्छा पहले थोड़ा सा 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस स्टोरेज इंटीग्रेशन S3, हम नाम दिए क्या, S3। सुशांत यहाँ S3 के S3 लिए हैं, ठीक है। ये गाइज ये देखो, ये S3 जो दिए हैं ये बाय डिफॉल्ट है, और बाय डिफॉल्ट है, ये कहाँ पे क्रिएट हो गया है, ये कहाँ पे क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने सुशांत अंडरस्कोर डीवी एक्सटर्नल स्टेज किया है, तो इसके अंदर होगा। देखो तो एक्सटर्नल स्टेज के अंदर है क्या इंटीग्रेशन बना हुआ, एनीवे स्टोरेज इंटीग्रेशन दिखता नहीं है, ठीक है। ये स्टोरेज इंटीग्रेशन कहीं दिखता नहीं है, अंदर बैकएंड में रहता है। ये किसके अंदर होगा, ये हमारा होगा इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर, ठीक है। देयर इज अ स्कीमा कॉल इंफॉर्मेशन स्कीमा, अंदर दैट स्टोरेज इंटीग्रेशन की डिटेल्स होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ भी धीरे धीरे समझेंगे, पहले हमारा जो काम है वो करते हैं। टाइप क्या है, what types we are going to create, external type, external stage type, external stage, because I already mentioned, if you don't know, can go and watch the previous video. Whenever we are loading the data from AWS, GCP or Azure, that time we have to create a external stage. Whenever we are loading data from internal our local system, then we have to create a internal stage. So we are creating external stage. स्टोरेज प्रोवाइडर कौन है, हमारा S3 है। इसी तरह से GCP रहेगा तो GCP लिखेंगे, उसी तरह से अजूर रहेगा तो अजूर लिखेंगे, अजूर ब्लॉब स्टोरेज लिखेंगे, ठीक है। इनेबल ट्रू लिखते हैं क्योंकि हमको डेटा मतलब दिखाना है, लोड करनी है, इसीलिए इंटीग्रेशन करनी है। फॉल्स करेंगे तो बंद तो जाएगा, लेकिन हमारा डेटा जो इंटीग्रेशन बिटवीन स्नोफ्लैक एंड AWS नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टोरेज ARN, AWS ARN कल हम बताए थे कि कहाँ से लेना है। हम जब बनाएंगे AWS का अकाउंट, वहाँ से ARN लेंगे, रोल बना के ARN लेंगे, और स्टोरेज अलाउड लोकेशन, हम जो स्टोरेज का S3 का लोकेशन होगा वो देंगे, जहाँ हम अपने फाइल को रखेंगे, ठीक है। और ये कमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रन कर देने से हमारा डेटा मतलब ये स्टोरेज इंटीग्रेशन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने बताया था, और ये सब के लिए ये कैसे कनेक्शन करते हैं एक दूसरे में, ये सब के लिए कल जाके देखना, ठीक है। इसको अच्छे से देखना, इसको समझ में आ जाएगा। डिस्क्राइब करते हैं कैसे उसको सेटअप करते हैं AWS और स्नोफ्लेक का इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर मीन्स अगेन फाइल, क्रिएट द फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट को क्रिएट करना है, ठीक है। फाइल फॉर्मेट, नेक्स्ट स्टेप मूव करो सुशांत। तुमने बोला कि फाइल फॉर्मेट का क्यों बनाया, फाइल फॉर्मेट का इसका देखो कैसे एड्रेस लिए हैं, अब मत कंफ्यूज होना। ये है सुशांत अंडरस्कोर डीवी डेटाबेस नेम है, दिस इज अ फाइल अंडरस्कोर फॉर्मेट, ये क्या है स्कीमा नेम है, उसके बाद CSV अंडरस्कोर फाइल फॉर्मेट का नाम है, ठीक है। अभी नाम पड़ रहा है, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम करते हैं, उसी तरह से यहाँ फाइल फॉर्मेट का नाम है। CSV का बना रहे हैं तो CSV बनाएंगे। टाइप जो होगा तो CS, ये नीचे वाला है,
S3 नीचे तो फिर S3 एक्सटर्नल स्टेज जो लिखा हुआ है ये तो इसका आना चाहिए फिर। किसका आना चाहिए? हम फॉर क्योंकि एग्जांपल CSV फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे ये नाम आ रहा है तो अगर नीचे S3 का है तो S3 दोनों दो चीज है फाइल ना। फॉर्मेट। तुम दो घर है, देखो दो डिस्ट्रिक्ट का चीज है, ठीक है। हम एक टाइप के यहाँ पे डेटाबेस में जो रखते हैं, एक टाइप के डेटा को रखते हैं, टेबल को टेबल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। हम्म। टेबल्स के अंदर रखते हैं, फाइल फॉर्मेट को फाइल फॉर्मेट के अंदर रखते हैं, उसके बाद एक स्टेज को स्टेज के अंदर रखते हैं। इसीलिए स्टेज बनाया गया। देखो एक्सटर्नल स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ फाइल फॉर्मेट को फाइल फॉर्मेट के अंदर रखा है, यहाँ स्टेज को स्टेज के अंदर रखा है। ओके। तुम पहले ये समझो, यहाँ पे डीबी नेम है, उसके बाद स्कीमा नेम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम, अंडरस्टूड। हाँ। ठीक है। हाँ, ये तो हम्म। पहला डीबी नेम डेटाबेस नेम, दूसरा क्या है, स्कीमा नेम, स्कीमा स्कीमा नेम, नेम एंड नेक्स्ट उसके बाद है स्टोरेज। ये ऑब्जेक्ट नेम है। ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, फाइल फॉर्मेट बना रहे हैं, फाइल फॉर्मेट का नाम है, और तीनों के बीच में डॉट लगा रहता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट में क्रिएट और रिप्लेस स्टेज। हाँ, क्रिएट और इसलिए बनाते हैं कि हम कहीं भी इस दृश्य से मूव कर सकते हैं। इस अगर इतना दे दें, अगर स्टेट कंट्री पता हो, अगर हमारे पास स्टेट पता हो और डिस्ट्रिक्ट पता हो, तो उसके अंदर में जो डेटा होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आदमी सर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इजली, कहीं भी होगा। कहीं भी अगर बोलेंगे कि हम इस भोपाल डिस्ट्रिक्ट का ये आदमी, चाहे हम बोलेंगे ये मेंसा आगरा का है, ये बोलेंगे कि मतलब गाजीपुर का है, ऐसा तो मिल जाएगा ना, इजीली मिल जाएगा। कंट्री बोलेंगे इंडिया के अंदर यूपी है, यूपी के अंदर आगरा है, उसके अंदर खोजना है बंदे को, तो थोड़ा इजी से खोजा जाएगा। तो इसी तरह से हम ऐसे करते हैं, ठीक है। नाउ हम्म। दूसरा बनाए हम, क्या बनाए, स्टेज बनाए हैं। स्टेज बनाया है क्रिएट और रिप्लेस स्टेज, स्टेज नेम, ठीक है। स्टेज का डीबी, फिर स्टेज और स्टेज नेम दिए हैं, ठीक है। स्टेज नेम दिए हैं और इसका यूआरएल लिए हैं। किसका यूआरएल लिए हैं, S3 का यूआरएल लिए हैं। स्टोरेज इंटीग्रेशन क्या बनाया था हमने, S3 बनाया था। ऊपर देखो स्टोरेज इंटीग्रेशन S3 बनाया था, इक्वल टू S3, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है S3, यहाँ पे देखो स्टोरेज इंटीग्रेशन S3 बनाए थे हम, वहाँ पे S3 बनाए थे, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे जाओ, ठीक है। S3 बना रहे हैं। और फाइल फॉर्मेट क्या है, फाइल फॉर्मेट का पूरा कहाँ क्या इक्वल टू क्या है, फाइल फॉर्मेट ऊपर बनाया है, देखो फाइल फॉर्मेट सुशांत डॉट फाइल फॉर्मेट डॉट CSV, ऊपर में ही है वो इधर, ठीक है। वो पूरा उठा के रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लिस्ट करेंगे फाइल को, जो फाइल आएगा हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, लिस्ट करेंगे जो AWS के साइड में है, उस चीज को रखेंगे, ठीक है। एंड सर ये क्रिएट एंड रिप्लेस टेबल कॉल सेंटर सुशांत। ये अभी किए ही नहीं हम लोग, ठीक है। ओके ओके अंडरस्टूड। ये नीचे का डिलीट कर दो सारा, मतलब ये तुमने बनाया क्या सुशांत, तुमने? हेलो सुशांत। हाँ सर, जो हमने इस स्टेज में डाला है डेटा, मैंने उसको इस टेबल में डाला है सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो इट इज वर्किंग फॉर यू। यस सर। ओके ग्रेट। और किसी ने किया है, मतलब ट्राई किया है डेटा को लोड करने के लिए? गाइस बोलो। नो नो। ओके नो सर। नो संतोष। ओके। संतोष, ये एक चीज पूछना था। एक्चुअली मैं अगर AWS अकाउंट क्रिएट करूंगी और अपने स्नोफ्लेक में इंटीग्रेट करूंगी तो वो होगा क्या अभी? मतलब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब राज मतलब उससे मैं उस ये पूछ रही। उससे कुछ हाँ नहीं मतलब होगा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं।
कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम लेकिन ठीक है। हम कह रहे हैं कि क्यों करना है, उससे कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नहीं मतलब क्योंकि डेटा जो हम लोग ये कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं AWS पे, तो वो तो रागिनी वाला अकाउंट है ना, सपोज मैं बोल रही हूँ, मेरा मेरा एक खुद का अकाउंट नहीं है, तो मैं कैसे वहां से करूंगी? जो भी रागिनी ने अपना कल अपलोड किया था, तो अ, अगर मेरा वाला अकाउंट नहीं होगा तो लिस्ट करेंगे थोड़ा ना, मेरा शो करेगा। ओके गाइज, नाउ टास्क इज दैट यहाँ से डेटा लोड करनी है। ठीक है। अब फटाफट सबको करना शुरू कर दो। अभी ये लाइव टास्क है सबके लिए। मैंने डेटा दिया है, अभी तक तो मैं समझा दिया। फाइल दिया है, S3 के अंदर जाके अपलोड करो फाइल, एंड यू कैन यूज देम दिस फाइल नाउ। ठीक है। Ansu, you can share your screen. Let them do. You can share your screen. ओके। बाकी लोग करो। यस सर। हम्म, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ हाँ। ठीक है। अभी अभी तुम लिखो एक फाइल, डेटा AWS डेटा लोडिंग लिखो, अपना नाम लिखो ऊपर में। नया नया, हाँ। उसके उसमें रीनेम करो। AWS। डेटा लोडिंग। ठीक है। अंडरस्कोर तुम अपना नाम लिखो, उसके बाद नाम लिखो, क्योंकि ये हो जाए कंफ्यूजन। ओके। डन। हम्म। अब देखो, तुम्हारा ऑलरेडी एक अंशु_DB है। ठीक है। है या नहीं है? यस सर। ओके। नाउ हम क्या करेंगे, उसमें दो दो स्कीमा बनाएंगे। वहां से कॉपी करो, पेस्ट करो। दो स्कीमा अभी लास्ट में हमने किया है चैट बॉक्स में। गो इनसाइड ठीक द है। चैट बॉक्स एंड कैन टेक। ये वाला है सर, अभी जो आपने दिए नहीं थे नहीं, अभी डेटाबेस। मैं ये दिया हूँ, उसके नीचे, उसके नीचे, उसी में है, सबसे लास्ट। हाँ, वही वही। ये नहीं, अरे वो ऊपर में क्या तुम खोल रही हो? हाँ। यस सर, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ऊपर वाला नहीं बनाना, ऑलरेडी DB तुम्हारा बना हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है, स्कीमा बनाना है, स्कीमा बनाना है। उसके अंदर में क्या स्कीम, कौन सा स्कीमा बनाना है? फाइल फॉर्मेट्स का बनाना है स्कीमा, राइट? तो अपना यस सर। अपना यहाँ माई DB, मेरे DB का नाम था माई DB। तुम अपना DB का क्या नाम है, उसको रिप्लेस करो। तुम अपने इसी DB को से, ही हटा दूँ? उससे नहीं, यहाँ कमांड में ओके, माई डीबी का। रिप्लेस करो उसको, तुम अपने DB के नाम से। अंशु डीबी है सर। हाँ, तो वो लिखो। यस। सेम हेयर एक्सटर्नल स्टेज हाँ में भी? हाँ, वो भी करना है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी अभी तुम ये इसको स्क्रॉल करो, अंशु DB को बड़ा करो, वहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके, लेफ्ट साइड में जाके। यस। हाँ, अभी देखो कितने दिख रहे हैं स्कीमा। स्कीमा इंफॉर्मेशन, स्कीमा एंड पब्लिक। ओके।
Now run these both these command one by one. 1 by 1. हाँ Schema file format successfully हाँ created. next you can create next. Okay. Yes, this is also created. Okay, this one is created. Then you are able to see right now two schema is created, right? Yes. Yes, sir. Okay. Now उसका क्या कहाँ है, AWS डेटा लोडिंग का फाइल में जाना, सीट में जाना, अभी ऊपर में ही है ना AWS सुशांत वाला, उससे हाँ, जाओ, उसमें जाओ। सुशांत वाला। हाँ हाँ, उसमें कॉपी करो ऊपर से। यही वाला करना होगा सर, हाँ है हाँ ना? हाँ स्टोरेज नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो नहीं कर सकती हो, तुमको जरूरत नहीं है उसको करने का। तो कहाँ से करना है सर? ये तो मेरा बन चुका है ना, स्टेजेस एंड नहीं 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 स्टेज, अरे रुको, पहले रुको, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर ही है सर। पहला स्टेप हो गया, हाँ, हेलो स्टोरेज इंटीग्रेशन भी हो गया। संतोष, ये कोड ग्रुप में एक बार फिर से सेंड कर सकते हो प्लीज, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो वो आ नहीं रहा है मेरे चैट में। क्या नहीं आ रहा है? जो कोड आज वाले सेंड किए ना आपने ग्रुप आज में, कुछ नहीं किया वो हूँ मैं, अभी कुछ नहीं किया हूँ। तो अभी ये मैं वाला तो मेरे इसमें नहीं है कि अभी एक सीट भेजा है, सिर्फ एक स्टोरेज सीट। इंटीग्रेशन। ये तो डेटाबेस, ये तो अभी बेसिक है, विकल्पना ने कर दिया ये कुछ तो है नहीं। अब स्टोरेज इंटीग्रेशन S3 ये, हाँ ये सब। अरे कल तो बनाया था ना मैं, हम लोग। हाँ कल जो बनाया उतना है, पर ये कुछ अलग लग रहा है, ये तो नहीं बनाया था कल, क्रिएट और रिप्लेस स्टोरेज इंटीग्रेशन S3। यार क्या तुम कंफ्यूज हो रही हो ये मतलब? बनाया एक्चुअली, ये क्या है कि कभी ये वाला डाले नहीं थे, पर तुमने बनाया है। हाँ स्कीमा तो मैंने बनाया है, पर ये आगे वाले कोड का। एक्सटर्नल आज वाला कोड कुछ करवाया ही नहीं हूँ मैं, अभी कुछ नहीं करवाया, मैं सिर्फ सीट भेजा हूँ आज के लिए। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सीट अभी कस्टमर डेटा 2020 का डेटा गया या नहीं गया, ये बताओ, गॉट द डेटा और नॉट? आया आया। हाँ, you can हाँ upload it in यस। S3 and the list are you able to see the data file or not? First check it. S3 में करना है, लिस्ट करना है, ठीक है। S3 को अपलोड करना है फाइल, then list it. S3 में अपलोड करना है। हाँ, upload it and then list it into the Snowflake. Okay. अंशु नेक्स्ट क्या है ना, मीन्स क्रिएट और रिप्लेस स्टोरेज इंटीग्रेशन, ये एक बार ही बनाते हैं, इसका जरूरत नहीं है, बनाने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सेटअप हो ठीक चुका है। है, ठीक है। नीचे जाओ, इस हम्म, स्टेप्स को स्किप करो, फिर क्या है, हाँ ये स्टेप्स को स्किप करो। ये वाला इंटीग्रेशन भी हो गया ना सर? हाँ हाँ नीचे जाओ, हम्म, नीचे जाओ। अब देखो फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट तुम्हारा अपना डीबी के अंदर बनाओ, इसको ये रन करो। फाइल फॉर्म रन नहीं ठीक करना है, है, उसको चेंज करो उसको, अपना डीबी का नाम डालो वहाँ पे। ओके। अंशु डीबी अब फाइल फॉर्मेट डॉट ये पहले देखो, ये फाइल। सही है, अब ये स्क्रॉल करना इंसो डीबी को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है स्पेलिंग देखो, फाइल FILE फॉर्मेट्स, ठीक है, रन इट, रन इट, पूरा रन करो यार, नीचे तक है उसका कमांड, ओके। पूरा रन करो यार। फाइल फॉर्मेट CSV फॉर्मेट सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, हम्म, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनाना है यहाँ एक्सटर्नल, पर अपना नेम चेंज करो। हाँ एक्सटर्नल स्टेज बनाना है, एक्सटर्नल स्टेज, ठीक है। हाँ वो क्रिएट करो। यहाँ पर भी फाइल फॉर्मेट अंशु। हाँ वो तुम्हारे अपना यूज करना है तो उसको करो, हाँ, चलो रन करो। और ये जो बकेट नेम है, ये सेम सेम सही। रहेगा। S3 का ये देखना सर, ये वाला
सुशांत सनी बकेट। हाँ वो ठीक है, वो चेंज नहीं करना है, वो चेंज उसी उसी का रहेगा क्योंकि उसी का रहेगा। सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बता रहा है अंशु डीबी डॉट एक्सटर्नल स्टेज डॉट AWS S3। तुमने गलती क्या किया है? ऊपर देखो, पर नेमिंग में कुछ गलती होगा। सर नेमिंग तो ठीक है, ऊपर से कैपिटल से भी ऊपर नहीं से पूरा पड़ता कॉपी करो, वहां से। ये। हाँ पूरा कॉपी करो वहां से, पूरा 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 पीछे तक। नीचे तक ये हाँ पूरा। हाँ पूरा नीचे फाइल, नहीं नहीं वो ऊपर लेवल लाइन वाली, वही उसी लाइन के ऊपर तक। फाइल फॉर्मेट तक। हाँ फाइल फॉर्मेट तक, ठीक है। रखो वहां पे, नीचे यहाँ पे फाइल फॉर्मेट के यहाँ बाद। पे। नहीं नहीं, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में, फाइल वो फॉर्मेट में। फाइल अंडरस्कोर फॉर्मेट है ना, अच्छा, इक्वल टू। हाँ। ओके। नाउ रन इट। नहीं है। यहाँ पे देखो स्टेज क्या क्रिएट किया हुआ है, चूज किया हुआ है, वो चेंज करो तुम। अंशु डीबी अंडरस्कोर फाइल फॉर्मेट ऊपर में, ऊपर हाँ में ऊपर में स्टेज। ऊपर में दे दोगे। डीबी क्या चूज किया हुआ है तुमने? अंशु डीबी यूज किया हुआ है सर, और इधर भी। नहीं नहीं सुशांत है वहां पे, और सुशांत सुशांत डीबी डीबी। है। यूज करो ना वहां पे, यूज अंशु सेटिंग डीबी। नहीं नहीं, सेटिंग उस के पर साइड क्लिक में। क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, आ जाएगा वो। ऊपर ड्रॉप डाउन है ना, सबसे ऊपर सेटिंग के बाजू में। हाँ। नहीं नहीं, जहाँ पे सुशांत अंडरस्कोर डीबी डॉट एक्सटर्नल स्टेज लिखा है ना, उस ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा, राइट साइड। अच्छा यहीं पे यहाँ ये पे सेटिंग क्वेरी के लिख साइड रहे हैं में, हाँ वहीं पे। हाँ। हाँ हाँ। हाँ 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 ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। हाँ हाँ। हाँ, हो गया। पब्लिक। वहां पे एक्स्ट्रा फाइल फॉर्मेट आएगा ना वहां पे। एक्सटर्नल स्टेज। एक्सटर्नल स्टेज। एक्सटर्नल आएगा। रन इट अब ना। ठीक है, अब करूँ? हाँ रन रन करो, करूँ? पूरा सेलेक्ट करके करो, देखो। नहीं, ये मतलब कुछ है, इसका इशू हो गया, ठीक है। ओके, ये इसके अंदर S3 के अंदर हम बना जो रहे हैं, वहाँ पे वो फाइल लेगा नहीं। स्टोरेज इंटीग्रेशन का जो लोकेशन ले रहे हैं वो नहीं लेगा। ऊपर रन करो, वो फिर से कमांड तुम जाके। ये वाले। नहीं नहीं, ऊपर जाना, मीन्स इंटीग्रेशन करने के लिए जाओ। सर ये स्टेज जो लिखा है ना, इसमें एस लगेगा। कहाँ कहाँ? नीचे, नीचे दिखाओ, सबसे नीचे जाओ। नीचे 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 अभी। जाओ, यहाँ नीचे पे। जाओ, अरे नीचे इसको जाओ। कुछ नहीं नहीं करो। नहीं, इसको कुछ मत करो, नीचे और नीचे। ये सर यहाँ पे स्टेज में एस लगेगा, AWS S3 CSV के पहले। हाँ यहाँ पे। स्टेजेस। हाँ, अब चलाओ। हाँ अब चलेगा, ठीक है। सर यहाँ पे स्टेजेस क्यों लिखा है तुम हमने? नाम देखो ना, वहाँ पे क्या लियो, जो नाम ऊपर में लियो वही लगेगा ना। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। स्टेजेस है, हाँ। चलो यस। अब। अब तुम स्टेज को ले लो, वो पूरा कॉपी करो स्टेज को। स्टेज कॉपी करो पूरा। यही ना सर? क्रिएट के बाद जो है ना, अंशु डीबी डॉट एक्सटर्नल स्टेज, वहां से पीछे तक। हाँ, यस। अब सुशांत के बदले में रिप्लेस करो, लिस्ट लिखा हुआ है वहां पे। @ के बाद लगाना। हम्म। यस। हाँ करो। नाउ। कॉलम यार, उसको अभी उसको लिस्ट करके कॉलम देके इसको सेमी रन कॉलम करो। दे, रन करो। सेमीकोलन लगाना है इसमें। अब यही चलानी है सर? हाँ हाँ
देखो अभी हो गया ना। सुशांत अपलोड नहीं किया लिस्ट क्या वो फाइल अभी वाला? कर दिया सर, ES डेटा 1। अच्छा डेटा 1 है, ओके हाँ सर। फाइन। ना अभी पहले दो जो सबको अपना अपना अभी फाइल वो दिया है, डाउनलोड करो, ओपन करो, फाइल डाउनलोड करो, ओपन करो। कहाँ से? चैट बॉक्स में मैंने फाइल दिया है अभी। ओके, ये वाली। हाँ डाउनलोड करो उसको, डाउनलोड डाउनलोड करो। कर दिया सर, शो नहीं हो रहा अभी। तुम अपने सिस्टम में देखो ना उसको, यहाँ क्यों खोल रही हो? यहाँ तो दिख जाता है, ठीक है ठीक है। डाउनलोड फेल्ड हो गया ना, वहाँ पे बोल रहा है डाउनलोड फेल्ड ड्यू टू सम इशू। डाउनलोड नहीं हुआ है वो, सी वहाँ पे तब तक पॉपअप आ तब रहा है। तक तब हाँ, तक करो सब कोई, मतलब अपना अपना ये करो। अनएक्सपेक्टेड एरर। एक्सपेक्टेड ओके, एरर। वो सर ब्राउजर में ज्वाइन की हो ना, और ब्राउजर में वो नहीं होता है डाउनलोड। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, हो नहीं, जाएगा। हाँ मैं पहले जब ब्राउजर में ज्वाइन की थी ना, पहले पहले हाँ जो भी डालते थे वो हाँ। डाउनलोड, मुझे भी यही एरर आता था। फिर अच्छा जब वो आपसे ओपन करो, ओपन करो, मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है उसको। यहाँ से ये करना सर होगा ना? हाँ ये, हाँ ये सर वैसे भी डाउनलोड नहीं होगी। नहीं होगी? एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट। हाँ हो गया ना। हो गई ना सर? हाँ हाँ हाँ। अब क्या करना है सर? ये सर ठीक है। अभी अभी सब अभी मैं रागनी कैन यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड रागनी विल मीन्स डू यू कैन फॉलो ठीक है। जल्दी से करो यार। हाँ हाँ, कर दिया शेयर मैंने। हम्म। इसमें मैं देख रही थी कि यहाँ तक के तो मैंने कर दिया है, फाइल अपलोड कर दी है, लिस्ट भी करके चेक कर दिया है, तो मेरी फाइल अपलोड हो गई है यहाँ पे। तो क्या नेक्स्ट, कस्टमर हाँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? क्रिएट टेबल क्रिएट करना है ना, हाँ कॉलम्स। और टेबल क्रिएट कैसे होगा? कस्टमर अंडरस्कोर 2020 जो है ना वही दे दो, इजी रहेगा ना तुमको तो। 1 मिनट में नाम देखती हूँ। 2020 है, 21 नहीं है। कस्टमर डेटा 2020। Okay, I'm making it easy little. Okay, I already done it. I'm sharing you the. क्योंकि वैसे भी ये पाइप सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड नहीं है ना, ये कुछ अलग लग रहा डेटा, सीएसवी तो है पर। चलो गाइज मीन्स मैंने जल्दी से दे ये दिया बस है, टाइप तुम कैसे करो। करना है सर? चलो उसको रन करो, मैंने दे दिया है। अभी ये रागनी जिसमें कर रही है ना सिस्टम, अब हमारे पास दो ही सिस्टम है अब हमारे पास अभी, जिसमें रागनी यूज कर रही है, एक उसका मतलब और एक सुशांत का है। तो इसमें हमको ज़्यादा चीज़ करना नहीं है, दोनों का सेम ही AWS यूज करना है। ऐसे हम, मतलब मेरा जो AWS है वो ये लोग यूज कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ अभी
ओके, मतलब मेरे को ये लिंक बस शेयर करना पड़ेगा इसका जो ऑलरेडी है ना, यूआरएल। वर्कशीट में तो ऑलरेडी सब कुछ है, मतलब कोई भी तो एक्सेस कर सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इसमें परमिशन का सीन नहीं होता, कोई भी ऐसे कर सकता है? अभी हम कोई अलग अलग अकाउंट बनाए नहीं, यूजर ही नहीं बनाया, एक ही यूजर नहीं में नहीं, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, ऐसा अलग कुछ यूजर नहीं है, अलग कोई यूजर भी यूज कर। हाँ अलग यूजर बनाएंगे तो हाँ। फिर हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो क्रिएट हो गया हाँ, टेबल। नाउ अब क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। हाँ तो करो अ, कॉपी बस। सर जैसे जैसे रागनी करी वैसे वैसे हमें करना है। हाँ, समझना भी है करना नहीं है, सिर्फ समझना भी है वैसे ही। क्यों कर रहे हैं? अगर डाउट है तो पूछो। यस सर, पूछना है कैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं मुझे। तब हाँ, जैसे हमारा स्टेज हमारा क्या बोलते हैं दूसरे उसमें है स्कीमा में, तो क्या हम उससे दूसरे स्कीमा में किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं हाँ हाँ, डेटा को? हो जाएगा, ओके। हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसको चेंज कर लो ना, अपने हिसाब से कर लो, पब्लिक में मत रखो, उसी में रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, पब्लिक में ही डेटा को पब्लिक में ही रखो। ठीक, इट्स फाइन। ओके। सर ये तो ऊपर जो भी इंटीग्रेशन किया था ये तो मेरे में दिख ही नहीं रहा। हम्म। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हूँ। तुमको वो क्यों दिखाना, अभी टेबल बनाओ ना तुम। हेलो। यस, यस। ये सेम कॉपी फॉर्मेट तो अपना सेम ही होगा ना एक्सटर्नल स्टेज के लिए भी? हाँ, कॉपी वाला तो ये था इसका। फाइल फॉर्मेट CSV। यहाँ पर डेलीमीटर में पाइप दूं ना कॉमा की जगह, ये तो पाइप सेपरेटेड है तो। अभी तुम्हारा अपना अपना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ठीक है। पाइप वैसे नहीं होता सीधा, हाँ ठीक। यहाँ पे @ आएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो नेम्ड इंटरनल स्टेज के लिए होता है ना। अभी इसमें भी हो, एक्सटर्नल का इसमें तो भी लिस्टिंग कैसे किए होगा। थे, लिस्टिंग कैसे किए थे, सेम वैसे ही होगा, ठीक है, इट्स फाइन अच्छा, वैसे। ठीक है।
Loaded. Can you show the data into the table? Yes. हो गया. Fine. Susan, what about you? टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ, टेबल क्रिएट करके उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ. मैं दूसरे स्कीमा में बना रहा था, कुछ दिक्कत आ रही थी. you can share your screen. Facing any issue? गैज वेरी इजी है. अभी इसके बाद कुछ तो है ही नहीं, मतलब इसमें मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने तो सिंटैक्स दे दिया ना, स्ट्रिंग ले लो, इतना करने का जरूरत ही नहीं है. स्ट्रिंग लेने से सब कुछ क्लियर है. वैरकर वगैरह हटाओ, वो ले लो वहां से. मैंने डायरेक्ट कॉपी ही किया है, मतलब सिंटैक्स ही पूरा किया है. तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी? ठीक है करो. ओके. सुशांत तुम करो तब तक ये. ओके. तो विजिबल है स्क्रीन? हाँ हाँ. इसके बाद तो मेरे कुछ विजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे थे कि सुशांत ने ऑलरेडी कर रखा है. विजिबल तुमने अभी तुम्हारा देखे हम स्क्रीन तुम्हारा. विजिबल नहीं, डेटा लोड नहीं हुआ है अभी तक तुम्हारा. तो स्क्रीन तुम्हारा वाइट ही दिख रहा हाँ, है बेसिकली. पता नहीं सर, यही आ रहा है मेरे में तो. अरे तुम पहले मतलब ये रीशेयर करो ना, स्टॉप शेयर, शेयरिंग करके फिर से, रीशेयरिंग हाँ करो. फिर से रीशेयरिंग करो. स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? नहीं. नहीं नहीं. ओके 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 ओके. मैं विजिबल है स्क्रीन? नहीं, तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं लग रहा है काम कर रहा है. सर पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकेंड सर बस. तुमने एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट किया है ना जब शेयर कर रही हो विंडोज? क्या? जब शेयर करे वो एंटायर स्क्रीन, मतलब ऑप्शन आता है ना एंटायर स्क्रीन हम्म. विंडोज ऐसे आता है ना. तुम एंटायर स्क्रीन करना या फिर विंडोज करना तो पूरा तुम्हारा सिस्टम का शेयर होगा. ये शायद तुमने सिर्फ टीम्स का किया है शायद. विजिबल है? हेलो? नहीं नहीं नहीं, अभी तक आया नहीं. स्टॉप इशू शेयरिंग भी आ करके रहा फिर है. से रीशेयर करो. Guys, next task is to upload the JSON file, whatever you have done last time. Two JSON file, right? अब नहीं अंशु, अभी वाइट वेट करते हैं, देखते हैं. वो नहीं आएगा, वो उसका साउंड भी नहीं आ रहा अच्छे से.
अंशु एक काम करो ना, तुम मीटिंग लीव करके रिज्वाइन करो, देखो कुछ अगर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ओके। अब विजिबल है? नो, स्टिल सेम। नेटवर्क इशू राइट। डेटा सर से मैंने तो कनेक्ट किया। चेंज कर, अभी मैंने फोन से कनेक्ट किया, वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा था। अभी भी नहीं विजिबल है, अभी तो सही चल अभी रहा आ, है। मतलब अभी नेट। आ रहा है। अभी आया, मतलब अभी तुम्हारा दिख रहा है स्नोफ्लेक। हाँ चलो। ठीक है, ठीक है। अभी देखो अभी क्या करना है सर? चैट चैट बॉक्स से उठाओ तुम। चैट बॉक्स से उठाओ। मैंने हाँ। कमांड दिया था, देखो कहाँ चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है। अब देखो यस पहले ये क्यों लिए हैं, पहले ये बताओ क्यों कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ईमेल आईडी स्ट्रिंग ये सर, सब ये टेबल क्रिएट करने के लिए है ना? हाँ तो कहाँ से क्यों लिए हैं, ऐसा टेबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये बताओ मुझे। सर डेटा के लिए अपने टेबल के अंदर डेटा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे माई डीबी की जगह मेरा आना चाहिए ना, अंशु डीबी। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जो डेटा हमने अपलोड किया है ना, जाके देखो डेटा अपलोड किया है अभी जो तुम हाँ, पेस्ट किया है, मैं चैट बॉक्स में हाँ। देखो अभी डाउनलोड किया उसको देखो, उस डेटा को ओपन करो। बगल में भी खुली वेट हुई है, सर, हम डाउन। ऊपर में भी खुली हुई है, यस, ऊपर में भी खुली हुई है तुम उधर राइट साइड में। ये वाली ना? हाँ यस सर। देखो क्या है, कौन कौन से कॉलम है यहाँ। कस्टमर आईडी है, तो देखो इसमें कस्टमर कस्टमर नेम है, कॉल ईमेल है। कस्टमर ईमेल है, हाँ, कस्टमर सिटी है, कस्टमर स्टेट है, कस्टमर डीबी है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। हाँ, नाउ गो टू द मीन्स हाँ। स्नोफ्लैक, वेर मीन्स गो टू द स्क्रीन, योर स्क्रीन स्नोफ्लैक। हमने क्या किया, हाँ। एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस टेबल। टेबल का नाम क्या ले हम्म। रहे हैं। सर टेबल का नाम कस्टमर डेटा। हाँ कस्टमर डेटा ले रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉलम है, कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी आईडी है, नेम है। किस में होगा, नंबर में होगा, राइट। हाँ, हाँ। कस्टमर कस्टमर नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में डालें, हम लोग क्या पढ़े थे। वर्कर टू। हाँ वैरकर टू पढ़े थे, लेकिन अब स्ट्रिंग पढ़ लो, ठीक है, याद रखना स्ट्रिंग भी हाँ, होता है, ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ ठीक है डिफाइन नहीं सर। कर, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ हाँ। डिफाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो डेटा अपलोड, स्ट्रिंग जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, हम डालेंगे ना जितना तो ले लेगा, ठीक है, अपलोड कर लेगा, ठीक है। ओके, ओके, हाँ मतलब इसे डेटा साइज डालने की जरूरत नहीं है। हाँ ईमेल्स डालें, स्ट्रिंग ईमेल्स जो स्ट्रिंग में लेता है तो वो नंबर ये होता है, स्टीटी जो स्ट्रिंग में, और डेट ऑफ बर्थ किस में होता है, डेट डेटा टाइप, ठीक है, डेट में, हाँ। डेट फॉर्मेट में लेती है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है डेट में होते हैं, तो याद बट अभी सर ईमेल, ईमेल आईडी तो हम नंबर भी होता हाँ है तो उसमें, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। हाँ तो इस पे ये स्ट्रिंग जो होता है हर चीज को लेता है, ठीक है, इसलिए ओके, क्रिएट इट, ओके। वो माई डीबी के बदले में अपना डीबी दो, नहीं तो चला जाएगा माई डीबी। माय अंशु डीबी। मेरा जिसका है उसी का नाम लिखो। ठीक है। ओके। नाउ। क्रिएट इट, रन इट ऑल, ओके। ठीक है। यस सर, क्रिएटेड सक्सेसफुली। हाँ। अब रागनी तो थोड़ा सा कमांड दे देना, मतलब वो वाला तुमने जो किया था अभी के लिए पेस्ट कर देना चैट बॉक्स में, हमने भी किया है, देखो ऊपर भी कमांड किया है पेस्ट, देखो चैट बॉक्स से लो, हमने भी किया है। ये संतोष आपने दिया है जो, है ना? हाँ कमांड, ओके। हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है,
प्रॉब्लम है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, इस कमांड को कब यूज करना है। अभी वो रागनी का ले लो, रागनी मेन से शेयर कर दो। रागनी ने अभी तो दिया नहीं है, देखते हैं। अरे दे रही हूँ, 1 मिनट। पैसा मांग रही है रागनी, बोल दे देने के लिए। ये लो, भेजा ओके, है। ये कॉपी इनटू अब कॉपी पेस्ट करो वहां यहाँ से। पे तुम क्या टाइप किए जा रही हो? टाइप नहीं कर रही सर, मैंने पेस्ट कर हाँ दिया। ठीक है, अब अपडेट करो, देखो तुम्हारा टेबल का नाम क्या है और क्या है, मतलब स्कीमा वगैरह क्या है। जल्दी से करो यार। ये सर रागनी टेस्ट रागनी, ये चेंज करना है ना सर? इसको अपना अंशु अंडरस्कोर डीबी में हाँ ये चीज पूछो सेट मत, करो। अब गुस्सा आएगा फिर, तो ये सब चीज पूछोगी तो हाँ फिर। सर। हाँ ठीक है। ठीक है सर। और उसका वो पूरे वो उसका सुशांत वाला डालो वहां से उठा के। @ के बाद स्लैश तक जो है ना, स्लैश तक देखो वसी वे। हाँ वहीं, उसके पहले सब डिलीट करके उसका उसका डालो। अभी ऊपर तुमने बनाया ना ये, मतलब हाँ, स्टेज बनाया ना, अंशु स्टेज। डीबी हाँ, कस्टमर डेटा। हाँ, कहाँ, पहले ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, अरे वो उसको मतलब ऊपर जाओ। हाँ, उसके ऊपर जाओ। और ऊपर नहीं है सर। तुमने क्या किया डेटा अभी जो बनाया था फिर? AWS डेटा लोडिंग में होगा सर वो सर। हाँ तो इसी में तो बनाई थी ये, अभी तो बनाई थी ना फाइल फॉर्मेट इसी में वगैरह होगा सब। अंशु, अंशु इसी में होगा ना उसका। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अभी ये तो अभी तो बनाई थी अभी ये तो। डेटा लोडिंग में है सर, शायद AWS डेटा लोडिंग बीच में सर जो ये है। सुशांत के में था ना? नहीं नहीं, अच्छा, सुशांत में क्यों था ये, तो इसका खुद बनवाए थे, अभी तो हम लिस्टिंग करवाए थे। फाइल फॉर्मेट ये पब्लिक में किस में हो? एक तुम मिनट। नहीं वो अपना नहीं एडोबलेस डेटा सर, मेरे लोडिंग में है अंशु शायद। वाला जो है ना, वो सीट में अभी उसी में हो ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं है वो, तो मैं तो बनवाया था हाँ इस। यहाँ पे ये रहा है, यहाँ सर, पे, यहाँ पे है। यहीं पे है, देखिए देखो ये फाइल बना फॉर्मेट रखा। है। कहाँ से कहाँ हाँ तुम चली गई, मतलब बताओ। सर, आपने बोला था सुशांत का, आपने बोला था एडिट करना था ये। नहीं नहीं ठीक है, रुको रुको रुको, वो नहीं लेना है, स्टेज लेना है, स्टेज का पाथ लो, स्टेज लो। वो अंशु डीबी एक्सटर्नल स्टेज है ना, वो लो। हाँ ठीक है। हाँ कॉपी करो, वो रखो उसमें। कहाँ था ये वाला? @ के बाद ले रखो, स्लैश डालना, स्लैश स्लैश स्लैश, स्पेस नहीं, स्लैश। हाँ। हाँ, अब अब इसके ये चीज़ तो हो गया। रन करो, देखो रन होता है। कौन से, पूरा ही? आपको पूरा करना है रन। चलो हो गया तुम्हारा भी, लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। फ्रॉम टेबल नेम। फिर टेबल टेबल नेम नेम लिख क्या है दे, मेरी? टेबल नेम नहीं क्या? नहीं, वो अंशु, अंशु अंडरस्कोर डीबी पब्लिक कस्टमर डेटा है ना टेबल, उसको ही कॉपी पेस्ट इधर कर दो। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ उसी ये में। वाला ना? हाँ हाँ हाँ। नाउ। रन कर दो। चलो हो गया इसका भी, ठीक है। तो गाइज मैंने अभी 4 तो फाइल ये जो दिए। डेटा आया है ये कहाँ से आया है अभी? ये हमने जो भी शीट है उसका ही दिया है आपने, ये कॉपी जो हाँ आपने हमें वो चैट पे वो दिया था? उसने क्या नाम है, सुशांत ने अपलोड किया S3 में, S3 से डेटा यहाँ आया है, ठीक है। तुमने अपलोड नहीं किया है अभी, अच्छा, ठीक है, S3 के थ्रू आया है वो, कॉपी किए हैं टेबल्स के अंदर, ओके। ठीक है। गाइज मैंने 3 फाइल और डाला है अभी, कस्टमर 2022 23 करके डाला, 21 23 करके।
और एक स्ट्रीमिंग डेटा का डाला है। ये सारे फाइल्स को कल मैं देखना चाहता हूँ, हर कोई करके रखना है। और जिसको आज समझ में नहीं आया है कुछ, वो प्लीज़ जाके कल का वीडियो देखे और आज का वीडियो देख के पूरा मतलब इसको कंप्लीट करे, ठीक है। फिर जाके आगे समझ में आएगा। डेटा अभी तक बेसिक ही था इसका, ठीक है। अभी जाके मेन इसका कोर्स कंप्लीट स्टार्टिंग होगा, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ एनी डाउट लेट मी नो। सर ओके संतोष। जैसे कि हमने ये फाइल फॉर्मेट बनाया है, हाँ, अच्छा तो हम इसमें फाइल फॉर्मेट बना के यूज करेंगे। डायरेक्ट फाइल फॉर्मेट का भी यूज नहीं किया है सुशांत। देखो वहाँ पे फाइल फॉर्मेट कहाँ पे यूज किए हैं, देखो देखो मैं बता रहा हूँ। फाइल फॉर्मेट सुनो ये सुनो, रहा। ये फाइल फॉर्मेट का यूज स्टेज के अंदर भी किए हैं, ठीक है। हाँ, हम फाइल फॉर्मेट ये इसका। स्टेज स्टेज के अंदर नहीं भी कर सकते हैं, नो इशू। इशू नहीं होने वाला है, समझ रहे हो तो। हाँ, अभी जैसे रागनी ने दिया है ना, देखो स्किप एरियर इक्वल टू डायरेक्ट, यहाँ पाइप है। डेटा को देखना पड़ेगा लोडिंग करने से पहले क्या है डेटा, सेमी कॉलन है, कॉलम है कि पाइप है, कौन क्या सेपरेटेड, फील्ड एलिमिनेटर क्या है। इसमें पाइप था, ठीक है। तो देखो रागनी ने ओके किया है, हमने पहले बताया था कि कैसे इसको ये करना है, मार्क करना है, ठीक है। ओके। पर जैसे कि, हाँ सर ये तो मैंने कर लिया, मगर जैसे कि अब हम इसको एक्स्ट्रा अलग से बनाना पड़ेगा हमको हर स्टेज। फाइल फॉर्मेट टाइप का स्टेज बनाते हैं ना। कोई कोई हर स्टेज अब क्यों बनाना पड़ेगा। अब जेसन बनाना है तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी तुरंत तो तुमको बताया ना, अभी हमने कुछ यूज नहीं किया है उसका, ठीक है ना। ओके सर। आगे अगर जेसन लोड करोगे तो हो सकता है इशू आए, क्योंकि हम जेसन का पहले से बनाना पड़ेगा। पहले पहले डिफाइंड कर चुके हैं ना। स्टेज में, एक्सटर्नल स्टेज में डिफाइन कर दिए हैं कि कौन सा डेटा ओके टाइप, कौन सा फाइल हम लोड करने वाले हैं। तो उसमें लिख रहे हैं सीएसबी, ओके सीएसबी ओके देखो नीचे में लिख रहे हैं सीएसबी। I'm already, we are ओके defining it as CSV file, right? So, sir, type is a file ओके। format. If you are going to, not here means Sushant, means stage अच्छा, जहाँ पे हमने अपलोड किया है। स्टेज में ये या नीचे 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 इस फाइल फॉर्मेट को छोड़ दो यहाँ पे, लास्ट लाइन। ये ये नहीं नहीं, स्टेज लिस्ट के ऊपर फाइल इसके फॉर्मेट ये नीचे, वाला इसके नीचे ऊपर। लाइन नंबर 43। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी तुम ये सब करो। अभी फिर से और बाकी करेंगे तो अभी बाकी क्लियरिटी आएगा। हमने 3 फाइल दिया है और एक्स्ट्रा। I wanted to say everyone from means you have created or not, ठीक है। ओके। ओके फाइन, ओके। फाइन, ओके बाय बाय।